Today we will do pick out the finite verbs and simple infinitive verbs from the following sentences. अच्छा, finite का क्या मैंने बताया था आपको? What I have told you, which is controlled by the subject. He comes, they come. But when the verb comes after to, he comes to know that I am a student. They come to know. After to, the verb which comes is called infinitive verb, and the verb which is controlled by the subject is called infinitive verb. So now you will be able to solve this whole page. Jim loves to play the piano and listen to classical music. Classical music, listen. Listen का क्या मतलब होता है? जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उसको कहते हैं I listen to classical music, not hear the music. Sometimes people say hear the music. Hear the music is not the correct thing to do. Okay? What is Jim loves to play? क्या करता है? Loves to play the piano and listen to classical music. अब बताएं finite कौन सा है? Loves. Loves is a finite verb, और इसके अंदर और कोई नहीं आया फिनिटिव इन्फिनिटिव. लिसन भी एक फिनिट वर्ब है, और ये एक से दो भी आ सकते हैं. जिम लव्स टू प्ले द पियानो एंड लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक. ओके. शी डिसाइडेड टू गो टू इस्लामाबाद द नेक्स्ट डे. Decided is controlled by this object, so decided is finite, or to go is infinite. अपने साथ आप सोचा करो कि अच्छा क्या हो सकता है. ये जो listen है, क्योंकि ये फ़ौरन इसके बाद आ गया है, तो ये infinite है, bare infinite है. Bare infinitive. Why? Because it has come just after the classical music, and to is coming after listen, so this is bare infinitive, but we can say this is simple infinitive. Simple infinitive के आपको बताया ना कि दो types होते हैं, two kinds of infinitive, to infinitive और bare infinitive. जैसे शहरयार loves to cook, और they forgot to bring their books. To bring और to cook क्या है? To infinitive. Or we all saw him throw the ball. Throw is the bare infinitive. Okay. Now is to go is infinitive. Understood? We agreed to be friends. Agreed is changed by we. अब क्योंकि ये past tense है कि हम उसके साथ agree हो गए. जब आप किसी के साथ agree करते हैं ना, आप कहते हो ठीक है ये करते हैं. I agree with you. Agree का क्या मतलब होता है? When you agree with some other person that I should do this or that. तो एग्री का क्या मतलब होता है? किसी के साथ एग्री करना, कि यस कहना, किसी चीज़ को यस कहना. जैसे आप कहते हो कि आज हमें खाने में मुर्गा पकाना चाहिए, और आप कहते हो आई एग्री विद यू. तो एग्री, वी एग्री टू बी फ्रेंड्स. हम यानी फ्रेंड्स बनने पे राज़ी हो गए. एंड नॉट टू फाइट विद वन अनदर. अब टू फाइट हम के लड़ेंगे नहीं, ये इनफिनिट हो गया, और एग्रीड finite हो गया. Understood? The soldiers wished. Wished is controlled by the object, so wished. Wish का क्या मतलब होता है? जब आप कहते हो I wish I could become first in class. आप एक दुआ करते हो या कहते हो कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ. तो विश का मतलब ये भी होता है. सोल्जर ने क्या विश की, क्या ख्वाहिश की? टू रिटर्न होम. द सोल्जर्स विश्ड to return home. Wished is controlled by soldiers. When there will be one soldier, they will say soldier wished. लेकिन अगर ये present tense में होगा तो wish और wishes, soldiers अगर ज़्यादा हैं तो they wish, और अगर एक है he wishes to return home. And so the king ordered them to march. To march क्या है? This is infinite and this is finite. This is finite and this one is infinite. Understood?
राना वॉज रेडी टू सिट फॉर द एग्जाम्स। टू सिट इज इन्फिनिट। राना किस चीज़ के लिए रेडी था? जब आप किसी चीज़ के लिए रेडी होते हो ना, तो आप कहते हो आई एम रेडी मॉम, आई एम रेडी। मॉम कहती हैं आपको ज़रा जल्दी करें, हमने इस जगह पे जाना है, आर यू रेडी? और आप कहते हो यस मॉम, आई एम 100% रेडी। और ये भी कहते हैं कि रेडी योर बेड बिकॉज इट्स टाइम टू स्लीप, तो आप कहते हो येस माई बेड इज़ रेडी। तो राना वॉज रेडी टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार था। कैसे तैयार होता है वैसे? कि आप जब तैयारी करके बैठे हुए होते हैं अपनी पढ़ाई की, सारे क्वेश्चन आंसर सारा कुछ आपको याद होता है, तो आप कहते हो कि आई एम रेडी टू सिट फॉर द एग्जाम्स। बट सडन इलनेस फोर्स्ड हिम टू चेंज हिज प्लान्स। लेकिन वो अचानक जो है ना बीमार हो गया, और उस अचानक बीमारी ने उसको फोर्स किया या फिर मजबूर किया हिम टू चेंज हिज प्लान्स, कि वो अपने प्लान्स चेंज कर दे। बट सडन इलनेस फोर्स्ड हिम टू चेंज हिज प्लान्स। ओके, सो टू सिट इज सिंपल इन्फिनिटिव। ओके, इट इज़ आवर ड्यूटी, और ये फोर्स जो है ना ये फिनिट हो गया। अंडरस्टूड? दिस इज finite because it is changed by sudden illness forced him. It is our duty to observe our Independence Day. अच्छा, observe का क्या मतलब होता है? जब हम मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मनाते हैं, जश्न आज़ादी मनाना, तो उसको कहते हैं ऑब्ज़र्व करना। क्या करना? ऑब्ज़र्व करना। किस डेट पे हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं? इट इज़ आवर ड्यूटी। हम 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं। एंड टू ऑब्ज़र्व इज इन्फिनिटिव बिकॉज आफ्टर टू द वर्ब डोंट चेंज, द वर्ब्स डोंट चेंज देयर फॉर्म्स। मदर रोज अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज़ है। मामा उठती हैं आपकी रोज़। राइज अगर आज उठी हैं तो आप कहेंगे माई मॉम rises in the morning at 5 o'clock, at 6 o'clock, at 7 o'clock. बट जब आप पास्ट की बात करते हो कि मेरी मामा उठी थी, तो आप कहेंगे राइज रोज रिजन। रिजन थर्ड फॉर्म होती है। ये पास्ट परफेक्ट है। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं साथ साथ आपको बताती हूँ ताकि आपको याद हो। राइज रोज रिजन, तो हम क्या कह रहे हैं? रोज़। क्या कह रहे हैं? रोज़। एक रोज़ वो भी होता है जो कि फूल होता है। ओके, दिस वन इज़ गुलाब का फूल, बट दिस इज़ राइस की सेकेंड फॉर्म रोज़ है। मदर रोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठी, टू प्रिपेयर और ब्रेकफास्ट, हमारा नाश्ता तैयार करने के लिए। तो टू प्रिपेयर क्या हो गया? इन्फिनिटिव। आपने इस सारे पेज को वन टाइम अपनी कॉपी पे उतारना है। अभी जेन में रखा करें कि अब इसका क्या आंसर हो सकता है। व्हेन आई विल रिपीट, यू विल ऑब्वियसली यू शुड think in your mind that what could be the answer. What could be the answer? It is never good to lie. आप झूठ बोलते? No, you never lie. Yes, this is good thing. It is never good to lie. कभी भी अच्छा नहीं होता कि आप झूठ बोलो. Okay, you should tell the truth all the time. So to lie is simple infinitive because it will not change the verb. After to, the verb will remain the same. He always does what his parents tell him to do. To do is infinitive and does is finitive because it changes. अगर हम यहाँ पे they लिख देते तो क्या होता? They always do. They always do, क्योंकि ये प्लूरल है, ज़्यादा बंदे हैं। ये देखिए ज़्यादा है ना, और ये दे ऑलवेज डू। लेकिन अगर ही होगा तो क्या होगा? ही ऑलवेज डज हिज वर्क। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? ही ऑलवेज डज वॉट हिज पेरेंट्स टेल हिम टू डू। जो उसके पापा, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं वो वही करता है। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माना करें बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू ओबे योर पेरेंट्स। ओके, he always does what his parents tell him to do. The bird wanted to fly away to a distant land. अच्छा, distant land कौन सी होती है? bird का तो आपको पता है कि वो fly करना चाहता है, fly away
दूर फ्लाई करना चाहता है, फ्लाई अवे टू अ डिस्टेंट लैंड। डिस्टेंस से निकला है, डिस्टेंस क्या होता है? फासला या तो डिस्टेंट प्लेस कौन सी होती है? जो प्लेस बहुत दूर होती है, क्या होती है? फार अवे, फार अवे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, और आप यहाँ पे जाते हैं, डिस्टेंट प्लेस है, बहुत दूर है, 2 मील है और मोर देन 2 मील, सो दिस इज़ डिस्टेंट प्लेस। और अगर यहाँ पे है तो दिस इज़ वेरी नियर, दिस इज़ नियर एंड दिस इज़ डिस्टेंट प्लेस। Always learn English and try to improve your vocabulary. Okay, vocabulary improve किया करें। The bird wanted to fly away to a distant land. Land भी कह सकते हैं और land की जगह पे place भी कह सकते हैं। तो fly away is a bare infinitive verb. Fly. Fly is, oh no, to fly. To fly है ना? So to fly is infinitive. It is infinitive. और wanted क्या है? Because it is controlled by bird, so it is finitive. Okay, now I think you have understood everything that what I am wanting to sum up here. Mainly आपने याद रखना है to के बाद जो भी आएगा वो infinitive होगा और दूसरा जो verb होगा वो finitive verb होगा।